students, welcome to Krishna Sodi classes. Okay students, in our earlier classes, we talk about the writing skills and that too related to +1 and +2. But you know students that without the basic concept of grammar, we can write intellectual views, a skill form of views in your writing skills. But until or unless you are perfect in your English grammar, you just can't give that impressive and that scoring mark in your writing skill concept. And if we talk about the +1 syllabus, there is an editing, omissions, errors. In that type of cases, the grammar plays a very important role. And in that, usually we used to think that there are the 8 pillars of English grammar. You all must have forgot as you were just started rising in +1, +2. So you just start thinking that there is no use of this thing. Literally, these are only related to the students of middle or lower classes. But students, until or unless you are not perfect in this, if you are not able to identify the difference between them, that means that rarely you are going to put up the things unusually and incorrect. Okay, let's talk about the basic concept of grammar. Usually I used to say बेटा कि जब भी हम क्लासेस लेते हैं या हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो वो यहाँ पे ग्रामर की जो स्पेलिंग है उसी को ही लिख देते हैं बेटा ग्रामर. We used to write ER, लेकिन हमेशा याद रखिए Ma taught me English grammar. So if you learn the word Ma, so you will know that we will not use ER over here. Okay students, let's talk about the 8 pillars of English grammar. Usually आपको पता है जब भी हम किसी इमारत की जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग लेते हैं तो उसका अगर आधार स्ट्रॉन्ग है तो आगे का जो जितनी भी बिल्डिंग या जो भी आप उसके ऊपर डेवलप करना चाहते हो वो काफ़ी स्टेबल, स्ट्रॉन्ग और सॉलिड होगा. तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि हमारे 8 पिलर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्या है. जैसे कि हम जानते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स, जब वो अल्फ़ाबेट्स कंबाइन होते हैं तो वो वर्ड्स बनाते हैं और जब वर्ड्स कंबाइन होते हैं तो वो सेंटेंसेस बनाते हैं. लेकिन इन सब चीज़ों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है इन अ करेक्ट सीक्वेंस टू गिव अ करेक्ट एसेंस और द करेक्ट सेंस ऑफ दैट वर्ड और सेंटेंस. Whenever you make a sentence, beta, you used to come to know about nouns. If we going to define the each 8 pillars of English grammar, that is noun, pronoun, verb, adverb, adjectives, conjunction, interjections and prepositions. Usually whenever you are doing editing, omissions, errors, usually all the concept will move from that only. Okay, I will give you the example related to that also. Firstly, I just talk about the noun. Okay, if you just going to give in the definition of a noun, rather it is not at all asked in your examination, but you must know that what is noun. Usually noun is a naming word. Okay, noun is a naming word. Okay, now you are talking about noun is a naming word, so it is a name of a person. Okay, it is a name of a place, it is a name of a thing, it can be a name of any animal. Usually, I just give you an example that whenever you see a person, what do you see? He is very beautiful, he is very impressive, he is selfish, he is jealous. So that means whenever you see a person, you just intellectually, you just give your feeling. Okay. So, whenever you go to any place, you see that this place is very historical or very educational point of view, it is very important. So, there is a thing also to think about the place. When you talk about a thing, that it is a metallic, it is very useful, it is useless, all these things. Okay. When you talk about an animal, for example, if I talk about dog, so what do you say? That dog is an honest, if you compare to the humans also. So what do you feel like? Whenever you just think of all these 4 things, everyone has their own feeling, abstract. जैसे कि हम लोग हमारे किसी भी पर्सन को लेके होता है, ठीक है, किसी भी प्लेस को लेके, थिंग को लेके
की। तो बेटे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो क्या है, हमारे अंदर से एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, निकालना। और हम ह्यूमंस, क्योंकि इट इज़ अ नेमिंग वर्ड, तो हम ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, फीलिंग्स। तभी बेटा जब हम लोग नाउन की बात करते हैं तो हमारे जो नाउन के टाइप्स हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और इन सब चीज़ों को तो हम इनके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। बट फाइनली वी टॉक अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब इन सब चीज़ों को लेने के बाद आपके अंदर से क्या फीलिंग आई, तो यानी कि फीलिंग को रिलेटेड भी हम लोग नाउन, जबकि हम उसे नेमिंग वर्ड कहते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड हमारी फीलिंग को हम लोग किस में लेते हैं बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। ओके बेटा, नाउ व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट नाउन देन वी जस्ट मूव टू अनदर, जिसे हम लोग हिंदी में हम लोगों ने संज्ञा, तो उसकी जगह पे हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, प्रोनाउन। दैट मीन्स whenever, like if we are talking about any person's name, we just talk about anything. जैसे रवि, रवि plays chess. Okay, now you just usually what happens कि अभी आप लोगों ने देखा बेटा कि मैंने कहा रवि plays chess, रवि is very good in chess, रवि usually play chess। तो आपने देखा कि बार बार रवि वर्ड का यूज करने से बेटर क्या है कि मैं इसका सब्स्टिट्यूट यूज कर सकती हूँ। जैसे कि रवि इज अ मेल, तो वी कैन राइट ही ओवर हियर, ही, हिम और हिज। ये इसकी मेल के सब्स्टिट्यूट्स हैं बेटा, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटे, अब आपको ये होना चाहिए कि हमें कहाँ पे यूज करना है इनको। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, अगर हिम, अगर हम कहते हैं कि हिज, तो हम उसे रिलेट कर रहे हैं। ओके, दिस इज रवीज। ओके, तो आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हो, और वैसे ही हिज जो है वो रिलेट करता है, ठीक है, किसी की चीज के साथ में। इट इज हिज बुक, ये उसकी किताब है। तो यहाँ पे थिंग के साथ में या किसी भी चीज के साथ में हम उसे क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। उसी तरीके से बेटा अगर हम लोग, ये तो हमने मेल के लिए यूज किया, अगर हम इसे फीमेल के लिए यूज करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं शी के साथ साथ हम लोग इसके साथ में और क्या यूज करते हैं बेटा, हर। वैसे ही प्रोनाउंस के बेटा 6 टाइप्स जो है उसके अंदर काफी सारे हैं, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेटिव हो, चाहे वो रिफ्लेक्टिव हो, एम्फेसिस हो, ऐसे काफी सारे टाइप्स हैं जो कि हम लोग लोअर क्लासेस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोगों ने हिमसेल्फ, अब आपको पता है हिमसेल्फ तो होता नहीं, तो हम लोग हिमसेल्फ। और यहाँ पे अगर वो कहते हैं कि शी डिड हर वर्क हर सेल्फ, तो यहाँ पे आपने देखा शी के साथ हर सेल्फ और ही के साथ हिमसेल्फ। Okay beta, now let's talk about the pronoun. Let's talk about the very essential and the important pillar of our English grammar, that is verb. And verb plays a very crucial role if we talk about any initial grammar preparation, जिसे हम लोग क्रिया कहते हैं बेटा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे verb। इसे हम अगर डिफाइन करें तो हम एक सिंपल सी लाइन में कह सकते हैं कि इट इज एन एक्शन वर्ड। ओके, एक्शन वर्ड यानी कि कोई भी काम करता हुआ, शी इज सिंगिंग, ही इज कुकिंग, ठीक है, दे आर प्लेइंग, दे आर बिल्डिंग समथिंग। तो ये सब क्या हुआ, जहां पे भी आपको काम करता हुआ नजर आता है तो उसे हम एक्शन कहते हैं, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, वर्ब। और जब हम वर्ब की बात करते हैं बेटा तो आपको पता है कि काफ़ी सारे टाइप्स, जैसे कि अगर आप वर्ब ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करते हैं, और मोर सपोर्टिव अगर हम टेंसेस की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग वर्ब को अच्छे से, अगर हम उसकी एक एक क्वालिटीज़ को, एक एक एसेंशियल चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमें टेंसेस में उन फार्मूलाज को रट्टा मारने की तो ज़रूरत ही नहीं है। यू जस्ट एक्टिव पैसिव करते हो। जैसे कि अगर आपने देखा कि शी प्लेज चेस, तो आपको पता चला प्ले हमारा वर्ब है, और वर्ब के साथ हमने किसका यूज किया, एस का। ऑब्वियसली वर्ब के साथ अगर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज किया, और अगर हम एक्टिव पैसिव कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमें पता चल गया कि हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो सिंगुलर प्लूरल, जैसे कि अभी मैंने बोला शी
एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चे, शी प्लेज चेस। अब आपने देखा कि यहाँ पे शी क्या है, सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे बच्चे, प्लूरल। यूजुअली बच्चे मेरे पास आते हैं बेटा, वो क्या कहते हैं, मैम हमें सुटेबल लगता है कि अगर एस लग रहा है तो सुटेबल लग रहा है, तो आई यूज टू राइट एस। इफ आई डोंट फील लाइक राइटिंग एस तो आई विल डोंट राइट एस। बल्कि बेटा इसका एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब क्या होगा मेरा बच्चे, प्लूरल। और अगर हमने यहाँ पे शी की जगह अगर हमने दे लिख लिया होता तो यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो जाता, दे प्ले चेस। ओके बेटा, तो इस तरीके से जो वर्ब है दैट प्लेस अ वेरी क्रूशियल एंड वाइटल रोल। Let's move to the adverb. Obviously, whenever we are just talking about in our lower classes, we used to give a very typical definition of anything. But usually, beta, you just don't try to mug up the things. Literally try, whenever you are talking about grammar, you must just try to understand the concept. English grammar is not that much difficult as we all used to think. Okay? Now we will talk about adverb. Usually add plus be verb. That means we have earlier come to know that what is a verb? Verb is an action word. Whatever is going on over here, जो भी हम काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमने add कर दिया उसके साथ. Okay? She is running slowly. Running is an action. लेकिन क्या ऐड किया हमने उसे, रन तो वो कर रही है पर कैसे कर रही है, स्लोली। आया मेरी बात समझ में? यूजुअली एडवर्ब्स को पहचानना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। जितनी भी ली होती हैं, ली फॉर्मेशंस के साथ में आती हैं, स्लोली, हार्डली, यूजुअली। तो ये जो ली फॉर्मेशंस होती हैं, ये जो आप लोगों की +1 के टॉपिक के अंदर आता है क्लॉजेस, तो उसके अंदर जब हम लोग एडवर्ब क्लॉजेस की बात करते हैं तो दैट प्लेस अ वेरी क्रूशियल रोल। ओके बेटा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जैसे हम लोग अगर साधारण भाषा में कहें या इसकी ट्रांसलेशन कहें तो एडजेक्टिव्स का मतलब क्या होता है बेटा, विशेषण, यानी कि किसी भी चीज़ की विशेषता बताना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करना, किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई कर देता है ये। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ शी द गर्ल हु इज इन ब्लैक ड्रेस इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, अब आपने क्या बताया, आई लव वाइट हॉर्सेस, आपको पसंद है पर कैसे हॉर्सेस, जो वाइट है। ठीक है, अब एडजेक्टिव्स के अंदर बेटा आप लोगों के जो एडिटिंग ऑमिशंस आते हैं दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इसमें क्वांटिफायर, न्यूमेरिकल और ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर, न्यूमरल वगैरह सब कुछ इसके अंदर आते हैं। जैसे कि सम है, मच है, एनी है, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द फ्यू, ऐसी काफ़ी सारी है कि उनको हम, क्योंकि हम लोग जब करते हैं बेटा काउंटेबल, अनकाउंटेबल, तो ये एक काफ़ी वाइड टॉपिक है जिसे मैं आगे के चैनल के अंदर जब अपने आगे की क्लासेस दूंगी तो उसके अंदर मैं आपको एडजेक्टिव को स्पेसिफाई करूंगी, क्योंकि ये आपके एडिटिंग ऑमिशंस और एरर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद में आता है बेटा कंजक्शन। अब अगर हम कंजक्शंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो वर्ड बाहर निकल के आता है वो है कनेक्ट, किसी भी चीज़ को जोड़ना। अगर हम लोग जोड़ने की बात करते हैं, एक सेंटेंस को हम लोग बार बार उसमें ही यूज़ करते हैं कि ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ फुली डेडिकेटेड, तो अगर आप कैसे करोगे इसे, ही इज़ अ डॉक्टर फुली डेडिकेटेड, या फिर आप उसे जंबल भी कर सकते हो। ओके, तो जब हम लोग कंजक्शंस की बात करते हैं बेटा, तो जब आप स्किल राइटिंग कर रहे होते हो तो दिस प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कि आप उसमें यूज़ कर सकते हो नॉट ओनली बट आल्सो, रैदर देन, नाइदर और, नाइदर नॉर, आइदर और, या फिर एज सून एज लॉन्ग एज, ऐसे काफ़ी सारे कंजक्शन हैं जो आपकी जो क्रिएटिव राइटिंग है उसको इस तरीके से इंप्रेसिव बना देते हैं कि हमें लगता है कि जिस तरीके से इडियम्स या फिर हम कह सकते हैं फ्रेजेस का काम भी ये बहुत अच्छे से करते हैं। उसके बाद भी हम आते हैं बेटा इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरजेक्ट इंटरनली। यूजुअली क्या होता है कि जब हम इंटरजेक्शंस की बात करते हैं बेटा, तो आपने देखा होगा कि अगर मैं किसी को अगर कोई भी मुझे आके कहता है मैम आई स्कोर 95 मार्क्स इन योर इंग्लिश सब्जेक्ट, आई यूज टू से वाओ,
obviously. And if our school won a trophy in football, cricket and anything, so usually when the student come, hip hip hooray, we won the match. So these are all hooray. And then in alas, that means usually used for that the patient was, alas he died after a lot of struggle by the doctors. तो इस तरीके से बेटा ये इंटरजेक्शंस होती हैं जो कि सडन फीलिंग से ली जाती है बेटा, सॉरी सडन फीलिंग से लिया जाता है, ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद में आता है बेटा हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रेपोजिशंस। एंड प्रेपोजिशंस प्लेस अ वेरी क्रूशियल रोल। ये नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को शो करता है। अगर मैं कहती हूँ दैट द पेन इज ऑन द टेबल, so obviously you will come to know that the pen, that is in subject, okay, that is an object, whatever it may be, where it is placed, okay, he is on, he is under. So obviously if you are talking about under, so you will not look upon there. और usually बेटा जब हम preposition को करते हैं तो हम इसे define कर सकते हैं preposition, यानी कि किसकी प्रीपोजिशन, नाउन या प्रोनाउन से पहले आके उसकी पोजीशन को शो करता है। ओके मेरे बच्चे, अब जब हम लोग प्रेपोजिशंस की बात करते हैं बेटा तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये सारे जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एक पर वीडियोस के थ्रू मैं आपको दूंगी चैनल के अंदर। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखती हूँ बेटा इन, इनटू। अगर आपने देखा एक तो मैंने ये यूज किया और दूसरा मैं यूज कर रही हूँ ऑन, और एक और यूज कर रही हूँ अपॉन। अब हम लोग यूजुअली जब भी हम लोग एडिटिंग ओमिशंस करते हैं, एरर्स करते हैं या फिलअप्स करते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे शी इज सिटिंग ऑन द टेबल या शी इज सिटिंग ऑन द चेयर। ओके, अब आपने देखा एक तो सेंटेंस मैंने बोला कि शी इज सिटिंग ऑन द टेबल या ऑन द चेयर। अगर मैं इसको दूसरे टर्म्स के अंदर मैं लेती हूँ, अगर मैं कहती हूँ कि शी केम एंड सिट अपॉन, अगर आप शी केम एंड अगर उसमें आप ऑन लिखते हो तो ये एक एरर है, क्योंकि जो ऑन है बेटा ये रेस्ट के लिए यूज करते हैं हम लोग, और जो अपॉन है वो मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। ऐसे बेटा काफी सारे टर्म्स हैं जो कि हम लोग प्रेपोजिशंस के अंदर लेते हैं कि कौन सी चीज रेस्ट पे है और कौन सी चीज मूवमेंट पे है। इस तरीके से बेटा आज मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर के 88 पिलर्स के बारे में बताया, बेसिक टर्म्स को डिफाइन करने की कोशिश की। अभी हम लोग अपना इसका सेकेंड पार्ट करेंगे जिसके अंदर हम लोग टेंसेस को लेकर कि वर्ब्स को ऐसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और टेंसेस इज नॉट दैट डिफिकल्ट as we all have thinking of all that things. Okay, thank you very much students, have a nice day.